Good morning, students. Today, in part 5, we learn about the distributive property, additive inverse, and multiplicative inverse. So, before I start with this today's part 5, let's do one quick revision. In part 1, we learn about the what are the rational numbers and how it can express. In part 2, we learn closure property of rational numbers. In part 3, we learned commutative property, and in last part, we learned associative property. Now, let's start with the distributive property. So, this is our fourth and last property, and this property, as you can see in the image, A in bracket B plus C is equal to, when we open the bracket, what it will give? A into B plus B into C. So my final equation is A in bracket B plus C is equal to AB plus BC. So if suppose I solve the equation by left side or else I solve the equation by right side, so in the both cases my answer will be same. जैसे कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं, I have taken the example with the help of number 3, 5 and 2. So on the left hand side 3 in bracket 5 plus 2. So what will we do? In first we open the bracket, so 5 plus 2 is equal to 7. So 3 into 7 is equal to 21. Now let's come in the right side. So in right side 3 into 5 plus 3 into 2. So 3 5s are 15 and 3 2s are 6. So 15 plus 6 is equal to 21. So my both side answer is same. So by this way I can say that LHS is equal to RHS. ये तो हमने देखा कि अगर ब्रैकेट में प्लस का साइन है तो हम कैसे सॉल्व करेंगे. नाउ अगर हम ये सेम इक्वेशन को बीच में अगर माइनस का साइन है तो कैसे सॉल्व करेंगे. तो उसमें डिफरेंट तो कुछ नहीं होगा, जस्ट साइन चेंज हुआ है तो उसमें क्या होगा, जस्ट पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा और मल्टीप्लिकेशन है वो तो सेम एज इट इज़ रहेगा. तो एज यू कैन सी इन द इमेज फॉर द सेकंड इक्वेशन, A in bracket B minus C, it will gives when we open the bracket. So AB minus BC. So let's check it with the help of one example. 5 in bracket 4 minus 3. So when we open the bracket, my final answer is 1. So when we multiply 1 with 5, so final answer would be 5. On the right side, 5 into 4 is equal to 20 minus 5 into 3 is equal to 15. So 20 minus 15 is equal to 5. So again the both side answer is same. So by this way I can see that distributive property work with the addition and subtraction. Now let's start with the example of distributive property for rational number. तो यहाँ पे जैसे हमने आगे देखा, A in bracket B plus C is equal to A into B plus A into C. तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे A is equal to ले रहे हैं -3/4, B is equal to 2/3 and C is equal to -5/6. तो इसके अकॉर्डिंग हमारा क्या बन जाएगा इक्वेशन, -3/4 इन ब्रैकेट B है तो B क्या है 2/3 प्लस C क्या है -5/6. ये हो गया हमारा पूरा इक्वेशन. तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे. तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट क्लोज ओपन करेंगे तो बाहर एज इट इज़ -3/4. नाउ इन ब्रैकेट क्या होगा, 3 and 6 का LCM ले लेंगे तो वो क्या मिलेगा 6. तो नाउ 3 into 2 is equal to 6. तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा 2 into 2, तो वो क्या हो जाएगा 4
और यहाँ पे 6 इंटू 1 इज इक्वल टू 6, तो मेरे न्यूमिनेटर में भी हो जाएगा -5 इंटू 1, तो वो मुझे क्या मिलेगा, -5 इंटू 1 इज इक्वल टू -5, तो यहाँ पे हो जाएगा -3/4 इन ब्रैकेट 4 -5, तो क्या हो जाएगा, -1/6। नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा, -3/4 इंटू -1/6, तो यहाँ पे हम ऐसा कर सकते हैं 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, तो मेरा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो मुझे ऊपर क्या मिल जाएगा, 1/4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8। So my final answer in LHS is equal to 1/8. Now let's check the same answer for RHS. तो RHS में क्या था, on the right hand side था AB plus AC। तो ए बी क्या था, हम यहाँ पे हम नंबर्स लिख देते हैं, तो ए था -3/4 इंटू 2/3 प्लस अगेन ए था -3/4 इंटू सी था -5/6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या हो सकता है यहाँ पे, 2 2 ज़ा 4 और 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे मुझे फाइनल आंसर क्या मिलेंगे, यहाँ पे ये 3 3 क्रॉस हो जाएंगे, तो ऊपर कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स कि 1 तो है, तो यहाँ पे साइन आएगा माइनस, ऊपर आएगा 1 और नीचे क्या है रिमेनिंग में 2, सो -1/2, फिर यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस, और यहाँ पे क्या बचा है रिमेनिंग में, ऊपर है 5 एंड नीचे है 4 2 ज़ा 8, सो यहाँ पे मुझे फाइनल आंसर मिल रहा है -1/2 प्लस 5/8। अभी हम आगे इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 और 8 का मैं एलसीएम ले लूँगी, तो वो हो जाएगा 8, यहाँ पे 2 4 ज़ा 8, तो मैं न्यूमिनेटर में भी उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर, -4 प्लस यहाँ पे 8 इंटू 1 इज इक्वल टू 8, तो सेम वे मैं ऊपर भी 1 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, सो -4 प्लस 5 क्या हो जाएगा, +1 और नीचे मिल जाएगा 8, तो मेरा फाइनल आंसर हो गया 1/8। तो ये क्या है, RHS। तो जैसे हमने पहले आंसर में देखा, वो भी मुझे मिल रहा था 1/8, और मुझे राइट हैंड साइड पे भी मेरा आंसर मिल रहा है 1/8। सो बाय दिस वे आई कैन से दैट LHS is equal to RHS. Now let's check what is additive inverse. So I think you already learned about the additive inverse in class 7. So what it is, basically when we want to get result answer 0, so at that time whatever the number we are adding in the given number, that particular number will become additive inverse. So here, if suppose in the case of rational numbers I write a upon b, so what will be the additive inverse for this number? But obvious, minus a upon b. So by this way I can say that whatever the number is given, that number's opposite sign will become additive inverse. तो यहाँ पे e अपॉन बी है, वो प्लस में दिया गया है, तो उसका ऑपोजिट साइन क्या होगा, प्लस का हो जाएगा माइनस, नेगेटिव, तो वो क्या मिलेगा मुझे, -e अपॉन बी। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर सपोज मुझे नंबर दिया गया है 3/4,
तो 3/4 का एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? सिंपल, -3/4। अगर आपको नंबर में प्लस दिया गया है तो आप उसका माइनस कर दोगे, अगर नंबर माइनस किया दिया गया है तो आप उसका सिंपली प्लस कर दोगे। If the sign is given in the negative form, then you will convert in the positive, and if the sign is given in the positive form, then you simply convert in negative. Second example negative के लिए है -p/q। तो अगर मुझे दिया गया नंबर माइनस फॉर्म में है तो मैं उसमें क्या कर दूंगी, उसका माइनस का रिवर्स क्या हो जाएगा, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, प्लस। तो उसमें हो जाएगा p/q। तो उसका एग्जाम्पल है -5/9। तो यहाँ पे क्या है, माइनस, तो मैं उसमें क्या ऐड करूँगी, प्लस। तो माइनस में मैं -5/9 में मैं +5/9 ऐड करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, 0। तो यहाँ पे बच्चों आपको बेसिकली यही चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपको एडिटिव इन्वर्स के केस में जो कुछ भी नंबर दिया गया है आप उस नंबर का सिंपली पॉजिटिव ऑपोजिट लिख दोगे। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दोगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दोगे। अब हमारा लास्ट पॉइंट है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इससे पहले हमने एडिटिव इन्वर्स में क्या देखा कि मुझे 0 चाहिए तो मैं वो नंबर में क्या ऐड करूँगी तो मुझे आंसर मिलेगा 0। यहाँ पे क्या था, एडिटिव इन्वर्स मीन्स यू हैव टू ऐड दैट नंबर। अब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, दैट मीन्स कि यू हैव टू मल्टीप्लाई विद दैट नंबर। तो वहाँ पे हमें क्या था कि क्या नंबर ऐड करके 0 लाना है, और यहाँ पे है कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर लाना है, नंबर 1। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो इसका सिंपली क्या हमको फंडा याद रखना है कि अगर हमारे पास है कोई भी नंबर, से फॉर एग्जांपल p/q है, तो मैं जो भी नंबर दिया गया है उसका रेसिप्रोकल कर दूंगी, ऊपर नीचे का उलट पुलट कर दूंगी। न्यूमरेटर हो जाएगा डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर हो जाएगा न्यूमरेटर। तो मुझे जो आंसर मिलेगा वो मिल जाएगा 1। बट ऑब्वियस है p/q इंटू q/p, तो क्या मिल जाएगा, QQPP क्रॉस हो जाएगी तो मुझे आंसर मिल जाएगा 1। तो ये केस में भी हम सिंपली याद रख सकते हैं कि जब भी मुझे कोई भी नंबर का अगर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो मुझे जो दिया गया नंबर है उसका मैं रेसिप्रोकल कर दूंगी। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है 6/9, तो 6/9 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 9/6। फिर दूसरा एग्जांपल है ओनली नंबर 3। तो अगर कोई भी नंबर अकेला है तो दैट मीन्स कि इसके डिनोमिनेटर में हो जाएगा नंबर 1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/3। I hope you all are cleared up to this point. If you have any queries, any doubts, then please ask me in doubt session.